Good evening, everyone. This is Sonia Atintani, and today we have a presentation on how to take COVID-19 in a positive way. Well, in the last 2 years, we have seen lots and ups and downs. We've seen lots of struggle. We've seen people going through bad phases, bad patches in life. But is it that the COVID has got only the negative side on it? Well, to discuss this only, we have been gathered here today. So I would like to take you through a small presentation. Please allow me to share the screen. Okay, now COVID-19. Bring out the good from the bad. If we try to use this caption in life, we can really get into the positive mode. We can change things for us to a better living. Are you able to see the slide? Okay, COVID-19 has two sides. Well, like every coin has two sides, even the pandemic has two sides. One, a positive, and the next is a negative one. It depends on us, how we take it or look at it. It is totally our call, our choice, our perception about the whole thing. Yes. See, for an example, I have a glass of water, which is only filled half. For me, it is half a glass of water. For you, it must be half empty. For someone, it must be full because it has half water and half air filled in it. So everyone has their own perceptions in life. In the same way, how we take up the circumstances in life also depends on us. And that is how we can change the course of life for us. Well, COVID-19 really got us into a very big trauma. And it was not only for us, it was for everybody around the globe. Everybody went through a bad patch. None of us were prepared for it. Well, first we'll discuss what were the negative side of the pandemic, and then we can get back to something good. Well, we had no physical activities for kids. There was no peer interaction. There was no socializing, increased frustrations, increased medical bills, closed business ventures, loss of family members due to deaths, global recession, sacked from jobs, increased hours of work, uncertainties and risks increased, inadequate tools or aids available, extra expenses and investments on gadgets like smartphones, laptops, Wi-Fi. Well, all this happened, yes. We had lots of expenditures also. We had to cut down on our source of income also. Kids were constrained to home. They were in the four walls of a house. They were not allowed to go out. They were not allowed to see the school campus. They could not play with their peers. They could not mingle around with their own age group. It was a very difficult task. And believe me, for us, it was still easy because we had work to involve ourselves. It was very difficult for kids to really cope up with such circumstances. And at a stretch of 2 years, it's a very big task for them. There were many people who were sacked from jobs because the offices had to close down. People had to cut down on their overhead expenses. So what they did is they only kept the staff which was really needed and removed the rest of them because nobody wanted to bear extra expenses. There was increased hours of work. We were all working from home. But since we were home, there was no proper timing. There was no schedule for us. There was work every time, 24 hours round the clock for us. Inadequate tools and aids available. Yes, due to lockdown, we all faced a lot of problem. We were not able to get all the basic amenities also at times. It got very difficult to arrange for them. Then there were extra expenses. We had to have a Wi-Fi connection. We had to have the best gadgets to work online because it was tech savvy working from home. So we had to first get used to it, then buy those things or invest in those things. There were many people who had to bear lots of expenses. And believe me, the best example for this, I can tell you, is the teachers we had during this time. They really had to do it. Some of them had to buy expensive Android phones. Some of them had to upgrade their laptops. Some of them had to invest in the internet connections, Wi-Fi, so that they could come online and teach the kids. You know, everything. And secondly, the most important thing was they had to get tech savvy. Teachers who were used to teaching through a blackboard and a chalk, a whiteboard and a marker,
had to come to the computer keys and teach children. They could not see the children physically. It was only on a screen. So everything was not very easy, but we had to deal with it. That was the ask of the time for us. That was the demand. And we all did it. These could be the negative side of it, but these negatives also taught us something positive. We learned something new, right? So why grip on it saying these were negative? Yes, business closed down. We lost lots of business. People did not have proper source of income. But all this comes and goes. We cannot depend on such things only. We have to move on, right? The life has to carry on. This was the state that we saw our country in. I think not only our country, any country for that matter. We saw restaurants closed down, schools closed down, theaters, malls, everything was in a silence. The offices were in silence. But yes, there was something good also. We had work from home, which I think would have never been possible otherwise. You know, it was only in the minds from last few years that we should have a hybrid mode of working. You know, we should have 3 days of going to office and 3 days working from home. Can we do something like this? But it was all not getting into function. Why? Because we were also used to a routine of going to our workplaces, that we thought working from home was not at all possible. We could not do it at all. But in last 2 years, we did it. And we did quite efficiently. It was not only work from home, it was work for home also. There were many people who were not used to household work, you know. They learned how to do the work because we were even deprived of domestic help for quite a long time. And if there was a quarantine home, people who were suffering from COVID-19, there were no domestic helps allowed in their houses and the societies. So we had to do everything on our own. So this even taught us how to work for home. Know our inner self. There were many people who, because of the race of earning money or a good livelihood or giving a good future to their family, support to their family, left all their hobbies and their potentials to one side and only concentrated on how they could have a good career and achieve things in life. But they had left something that was within themselves, some interest that was really a passion to them. During these pandemic days, they came out with those passions also, because when you were not working or you did not have anything else as a source of entertainment, then they tried coming back to their old hobbies and interests and started involving themselves in it. And many of them took that as a job opportunity, as an earning source for them. So explore new ways of earnings. I saw many females, you know, they started earning. They used to bake. First, it was like, you know, occasionally they used to do it. But then during the pandemic, when they got orders, people started appreciating. They started doing it and earning from it. So that was a wonderful thing. Don't you think? If the pandemic would not have come, people would not have understood their potentials only. उनको अपनी अंदर के हुनर का पता ही नहीं पड़ता. मतलब जो चीज उनके अंदर दबी हुई थी वो एक पैंडेमिक के लिए ही आना पड़ा. मतलब अगर पैंडेमिक नहीं आता तो शायद उन्हें पता ही नहीं पड़ता कि हमारे अंदर ये भी हुनर है, ये भी टैलेंट है. There were multiple sources of income. People started involving themselves in small things and started earning because they thought that they would need an extra source of income. And believe me, this pandemic taught us to be multitasking, you know. हमें ये समझ में आया कि हम लोग किसी एक चीज में स्पेशलाइजेशन करके शांत नहीं बैठ सकते. हमारे पास और भी कई चीजें होनी चाहिए. एक बड़ा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसको हम यूटिलाइज कर सके. अगर एक जगह से सोर्स ऑफ इनकम बंद होता है तो हमारे पास एक दूसरा डोर होना चाहिए, एक दूसरा अपॉर्चुनिटी होना चाहिए जिसके थ्रू हमारे पास इनकम आती रहे. Created new opportunities for work. Yes, if there were some ventures closed down, some businesses closed down, the PPE kits, the masks, the sanitizers, and everything that was not used previously by us in that big quantity came into existence. There was a lot of demand for those products. And to meet the demand, there had to be a supply also. So people started investing in those and started marketing for those things. And they started earning a new way of earning for them. It made us tech savvy. हम लोगों ने कंप्यूटर सीखे. जिनको नहीं आता था उन लोगों ने सीखने की कोशिश की, क्योंकि हमारे लिए वर्क फ्रॉम होम में टेक savvy होना बहुत ही
जरूरी हो गया था। इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क फॉर ऑल ऑफ अस। सबका अपनी फैमिली के साथ एक बॉन्ड बन गया। हम लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में एक रूटीन में इतना बिजी हो जाते हैं कि हमारे पास एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं होता। हम या तो एक ब्रेकफास्ट टेबल पे मिलते हैं या फिर डिनर टेबल पे मिलते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत चैट हो जाता है व्हाट्सएप पे या 2 मिनट का कॉल हो जाता है, मेरे घर पे ये सामान नहीं है, आप लेते हुए आओगे, मैं मार्केट में हूँ, घर पे कुछ चाहिए। दीज आर स्मॉल थिंग्स दैट वी यूजुअली टॉक ड्यूरिंग आवर वर्क, राइट, रूटीन वर्क। पर जब हम लोग घर पर ही थे, घर पे रहने लगे, तो हमारे को एक दूसरे के साथ एक्स्ट्रा टाइम मिला, क्वालिटी टाइम मिला फैमिली के साथ। हम लोगों ने अच्छे बॉन्ड्स बनते हुए देखे फैमिली में, जो कहीं पीछे छूट चुके थे। स्पेंड क्वालिटी टाइम विद नियर एंड डियर वंस, यस। टॉट अस टू रिस्पेक्ट टाइम, हम लोगों ने टाइम को रिस्पेक्ट करना सीखा। मेंटेन बैलेंस बिटवीन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, हम लोगों ने एक बैलेंस बनाना सीखा। हम लोगों ने ये इंपॉर्टेंट सीखा कि हमारे लिए जितनी इंपॉर्टेंट अपनी प्रोफेशनल लाइफ है, उतना ही इंपॉर्टेंट हमारा पर्सनल लाइफ भी है। तो हम दोनों को साथ लेकर चल सकते हैं अगर हम चाहे, हमें किसी एक को इग्नोर करने की जरूरत नहीं पड़ती उसके लिए। तो दोनों को एक बैलेंस पर लेकर चलना भी हम लोगों ने इस पैंडेमिक के दौरान सीखा। वैल्यू आर डोमेस्टिक हेल्प, हम में से कितने थे जो अपने हमारे घर आए हुए डोमेस्टिक हेल्प की रियली रिस्पेक्ट करते थे। हम उनको इतना काम देते थे, उनके साथ इतना फ्रस्ट्रेशन में बात करते थे, मतलब हमारा गुस्सा अगर ऑफिस का होता था तो भी उन पर निकलता था, अगर अपने बच्चों पर होता था तो भी उन पर निकलता था। हम उनकी अहमियत ही नहीं समझे, लेकिन जब लॉकडाउन में 6 महीने खुद को काम करना पड़ा, तब हमें ये एहसास हुआ कि नहीं, वो लोग हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, वो लोग कितना काम करते हैं, हमारा कितना काम हल्का करते हैं। आज अगर वो लोग हमारे घर का काम करके जाते हैं तो ही हम अपने प्रोफेशन को टाइम दे पाते हैं, अपने फैमिली को टाइम दे पाते हैं। उनका इम्पोर्टेंस हमने तब सीखा, उनको वैल्यू करना सीखा। तो अगर हमारे लिए पैंडेमिक कुछ नेगेटिव लाया था, तो हमारे लिए वो कुछ पॉजिटिव भी लाया था। तो हम नेगेटिव को छोड़कर अपने साथ पॉजिटिव को लेकर क्यों नहीं चल सकते? हम सिर्फ नेगेटिव को देखकर उसके ऊपर रोते क्यों है? Why are we crying? Why are we cribbing on the negative side of a pandemic? Let's take things in a positive way. Let's say that the pandemic came because it had to take us in an advanced mode of living, to a very futuristic living, जो हम लोगों ने शायद सपनों में सोची थी, कभी हम लोगों ने ख्यालों में देखा था, लेकिन हकीकत नहीं बन पाया था। आज लोगों के पास ऑनलाइन कोर्सेज हैं, बच्चों के पास, बच्चे ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, अलग अलग एकेडमी से सर्टिफिकेशंस ले सकते हैं अपने घर बैठे, वरना पहले इतना मुश्किल था। सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल मैं इस पैंडेमिक का दूं, मेरे लिए वर्चुअल प्लेटफॉर्म एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था, एक बोन था। शायद मैं इतने सारा नेटवर्क नहीं क्रिएट कर पाती अगर मेरे पास ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म नहीं आता तो, क्योंकि हम सब अपने अपने शहरों में थे, हमें शायद ही कोई जानता था। लेकिन इसकी वजह से जब हमारे एजुकेशनल कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, वेबिनार्स कंडक्ट होने शुरू हुए, हम लोग ऑल ओवर इंडिया से ही नहीं, कई अलग अलग कंट्री से इकट्ठे हुए हैं। हम लोगों ने सेमिनार्स अटेंड किए, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए, हम लोगों को कितना कुछ पता पड़ा, हम लोगों का एक ग्लोबल कनेक्ट बन गया। तो क्या एक ये पॉजिटिव साइड नहीं था पैंडेमिक का हमारे लिए? तो इस तरह से अगर हम चीजों को पॉजिटिव ले, तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है, बजाय इसके कि जो खो गया या जिसको गवा दिया उस पर रोए। इससे बेटर है कि जो हमारे पास है और उससे हम बेहतर क्या कर सकते हैं, वो अगर सोचना शुरू करें, तो लाइफ हमारे लिए उतनी आसान और इजी हो जाती है। अगर हम पैंडेमिक के दौरान सोचते हैं, जैसे हम लोग क्राफ्ट करते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट, हम लोग कहते हैं ना, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बनाओ। जो हमारे पास वेस्ट बचा हुआ है उसमें से हम बेस्ट क्या क्रिएट कर सकते हैं। वैसे ही मैं चाहती हूँ कि आप लोग पैंडेमिक को भी देखें, जो नेगेटिविटीज थी उसको एक साइड में रखो, उसमें से जो पॉजिटिव है, जो हमारे भलाई के लिए है, उसको अगर हम साथ लेके चले, तो लाइफ हमारे लिए और आसान हो जाती है। तो हम लोग उसी के हिसाब से अपना कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ कोविड-19 इन एजुकेशन, काफी लोगों ने कहा कि एजुकेशन सेक्टर को बहुत हिट किया।
हाँ हिट किया, क्योंकि बच्चों का फिजिकली प्रेजेंस मिसिंग था स्कूल से, उनका एक बॉन्ड जो टीचर्स के साथ होता है वो मिसिंग था, उन लोगों की फिजिकल एक्टिविटीज नहीं होती थी। और कई घरों में जिनके पास पेरेंट्स इतने ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे, या जिनके पास लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, या कहीं कहीं पर कंप्यूटर एड्स नहीं थे उनके पास, वाईफाई कनेक्शंस नहीं थी, वहां पर दिक्कतें जरूर आई। लेकिन हम लोगों को एक न्यू डायमेंशन मिला, new dimensions to learning and exploring, like global platforms, virtual classrooms, distance learning, skill enhancement, collaborative learning through online mode। तो ये सब चीजें हमें पैंडेमिक ने दी है। आज अगर हम ये सोचते कि 2 साल लॉकडाउन था, पैंडेमिक था, बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, लेकिन पढ़ाई रुकी नहीं, एजुकेशन रुका नहीं। स्कूल्स ने न्यू नॉर्म्स अपनाया, टीचर्स ने अपने आप को अपग्रेड किया, और स्कूल्स कंडक्ट हुए, चाहे वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर ही सही। लेकिन वी शुड बी थैंकफुल कि हमारे बच्चों का साल बर्बाद नहीं हुआ, हमारे बच्चे 2 साल पीछे नहीं रह गए। हाँ, थोड़ी सी कमियां जरूर आई, लेकिन टाइम रहते उन कमियों को भी पूरा कर दिया जाएगा। बच्चे अगर अपने से, जैसे आज ऑनलाइन है, आज बच्चे कितने इंडिपेंडेंट हो गए हैं, अपनी पीपीटीज खुद बनाते हैं, अपने प्रेजेंटेशंस, अपने चार्ट्स खुद बनाकर ऑनलाइन सबमिट करते हैं, यहाँ तक कि वो हमें भी सिखाते हैं कि किस तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज करना चाहिए। तो एक तरह से तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ही था पैंडेमिक का। ये है हमारा वर्चुअल वर्ल्ड जो हम लोगों ने लास्ट 1.5-2 साल में जिया है। हमारे लिए वर्चुअली कनेक्ट एंड लर्न था, हम लोगों के लिए मीटिंग्स ऑनलाइन थी, वर्क फ्रॉम होम था, ऑनलाइन बिजनेस था, बिजनेस भी ऑनलाइन काफी पिक हुआ। हम लोग मार्केट जाते थे, चीजें खरीदते थे, 10 दुकानों पे घूमते थे, एट अ क्लिक ऑफ अ फिंगर यहाँ पर सब कुछ हमारे लिए ऑनलाइन बिजनेस पे अवेलेबल था। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स थे, हम उन प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन करके वहां से सिर्फ सामान खरीद नहीं सकते थे, वहां से हम लोग अर्निंग्स भी लेकर आ सकते थे कमीशन एंड इंसेंटिव बेसिस पे। तो ये सब मिलाकर हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव था। अगर हम इसको पॉजिटिव देखें तो ये पॉजिटिव था, अगर हम नेगेटिव को पीछे छोड़कर इस चीज को अपनाएं तो हाँ, हम लोगों ने कुछ खोया तो बहुत कुछ पाया भी पैंडेमिक में। वेल, प्रेजेंटेशन यहाँ पर खत्म होती है। अगर आप में से किसी के पास भी कोई सवाल हो या अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हो तो आप लोग कर सकते हैं। मैं अभी के लिए स्क्रीन शेयर बंद कर रही हूँ। यस दीक्षिता, पूनम, आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे, कुछ बताना चाहोगे पैंडेमिक के दौरान? सोनिया जी, आप ये रिकॉर्डिंग किया है ना आपने? हाँ जी, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं? बिल्कुल शेयर कर सकती हूँ आपके साथ, बिल्कुल। आप ये मेरे साथ शेयर करिए वीडियो, तो मैं थोड़ा डिटेल में इसको अच्छे से देखूंगी, क्योंकि आज मेरे 2-3 कॉल्स कंटिन्यूसली चालू थे, तो मैं ध्यान नहीं दे पाई। तो सो सॉरी फॉर दिस, एंड ये रिकॉर्डिंग मेरे साथ जरूर शेयर करिए। बिल्कुल शेयर करूंगी। और आपको क्या लगता है कि आपको पैंडेमिक ने क्या दिया, नेगेटिव या पॉजिटिव? पैंडेमिक, मैं सच्ची बताऊं, बाय गॉड ग्रेस वी आर एब्सोल्युटली सेफ इन दिस पैंडेमिक। और मम्मी पापा थे साथ में, तो हमने बहुत ही पॉजिटिवली टाइम निकाला। एंड हमने थोड़ा अपना काम को थोड़ा स्लो डाउन किया था, लेकिन हम रुके नहीं थे। तो बहुत अच्छी ग्रेट अपॉर्चुनिटीज भी हमने फाइंड आउट किया कि पेंडेमिक में हम क्या क्या और न्यू क्या कर सकते हैं। जी, सो many things going on in mind, but physically we are absolutely safe, and बहुत ही हंसी खुशी से हमने अपना फैमिली में जो टाइम था वो गैदरिंग में हमने एंजॉय करके निकाला। जब फैमिली आपके साथ में है तो मेरे ख्याल से अगर हंसी खुशी से हम टाइम निकालते हैं तो किसी भी सिचुएशन को हम अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। राइट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक तरह से जो मेरा टॉपिक था आपने उसको बिल्कुल ही सही दिशा दी कि वो पॉजिटिव वे में गया आपके लिए भी एक। क्या बात है। मैंने तो इतना, मतलब मेरे लाइफ में जो, मतलब हमने जिस तरह से टाइम निकाला वही मैंने आपके साथ शेयर किया। बिल्कुल। सो मतलब मुझे ये आपकी रिकॉर्डिंग बिल्कुल मुझे सुनना है।
और जी इसके ऊपर बिल्कुल। मैं आपको रिव्यू भी पक्का रिकॉर्डिंग सुन के मैं जरूर देना चाहूंगी। हाँ दीक्षिता, आप कुछ शेयर करना चाहोगे? दीक्षिता जी जो हैं हमारे मतलब मुझसे मिलके गए हैं दीक्षिता जी, इनका कपड़ों का बिजनेस है। दीक्षिता जी हेलो, आप यहाँ हैं, सुन रहे हैं दीक्षिता जी? जी जी मैम, हाँ जी मैम। दीक्षिता जी, आप कुछ शेयर करना चाहोगे अपना एक्सपीरियंस? मैम मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि जैसे ये लॉकडाउन में मैं ऑनलाइन बिजनेस का भी करती हूँ और जी और ये मोदी केयर का भी मैं करती हूँ। तो लॉकडाउन में मेरे को इतना टाइम मिला कि मैं उसमें ज्यादा मतलब उसमें डीप तक मैं समझ सकी उसमें, और लोगों को भी मैं फोन करके कॉल करके समझा सकी, और इसकी वजह से मेरा बिजनेस में ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ। ओके ग्रेट, वो तो हम्म, बहुत अच्छी ग्रेट। बात है। हाँ, एक्चुअली और क्या बहुत होता सारी है, चीजें उसमें सीखने को भी मिली मैम। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर हम जी जिस चीज को खो चुके हैं या जो खोने वाले हैं, उसको लेकर अगर हम रोते रहेंगे तो हम आगे भविष्य को भी नहीं संवार पाएंगे, राइट? जी मेरा एक्चुअली जी आज का जी जो वेबिनार था वो इसी के बेसिस पे था, क्योंकि मैं ऐसे कई जी लोगों से इस बीच में मिली जिनका ये कहना था कि हम लोगों ने काफी नुकसान बेर किया, ये हो गया, पेंडेमिक ने बहुत बुरा टाइम दिखाया, पेंडेमिक नहीं आता तो ऐसा होता। मतलब उसमें कुछ तो अच्छा हुआ होगा। आज अगर 10 लोगों ने उस, मैं मानती हूँ हम सबने लॉसेस देखा, ऐसा नहीं है। आज जी मेरी फैमिली में भी डेथ्स हुई कोरोना के जी कारण, हमारी फैमिली में भी कई पॉजिटिव केसेस आए, हम लोगों ने भी बहुत स्ट्रगल देखा। लेकिन वो हम्म, एक लाइफ, हर्डल्स तो हर लाइफ में आते हैं, राइट? एक जी कहावत है जी ना, रोजेस नेवर कम विदाउट थॉर्न्स। ये गुलाब कभी यस। भी बिना कांटों के नहीं हाँ, आता। नहीं तो नहीं लाइफ भी आता, नहीं इतना आता। आसान तो नहीं बन सकती ना किसी के लिए। तो अगर ये मुश्किल दौर एग्जैक्टली। आया है तो उसको हंसकर हमें ही आगे बढ़ना है, राइट? जी जी जी। इसीलिए हम देखो लोगों को मुश्किल चीजों को में पॉजिटिव मैम लेना चाहिए। एक्चुअली मेरे घर में भी हम लोग 5 जन हैं, और पांचों लोगों को कोरोना पॉजिटिव आया था, और जिनमें से मॉम डैड और मैं तीनों हॉस्पिटलाइज भी हुए थे। तो ओके। हाँ, हमें भी बहुत ज्यादा वैसे खर्चा भी आ गया था, लाखों में। पर फिर भी हम लोग सब सेफ है, ठीक हुए और वापस घर आ गए, ये भी सबसे बड़ी बात है वैसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, अगर हम घर आ हम्म, गए हैं, सब कुछ हो गया है, तो जो पैसा खर्च हुआ वो दोबारा कमाया जा हम्म। सकता है। हम हाँ होंगे हाँ, तो हम वही। कमाएंगे, राइट? जी, वही हाँ वही वही। यस। एक्चुअली क्या है ना, पैंडेमिक के आड़ में कुछ लोगों ने मुझे गलत मत लेना आप लोग, एक्चुअली क्या है, जी पैंडेमिक जी। का एक अच्छा बहाना देकर जो लोग आलसी थे ना, उन लोगों ने बहुत अच्छे हम्म। से अपना पल्ला झाड़ दिया। भैया पैंडेमिक है, वैसे भी काम नहीं है, मतलब जिनको हाँ, नहीं करना था उन्होंने नहीं किया, और आप देखोगे वही लोग रो भी रहे हैं जिनको नहीं करना था। जिन लोगों के सही है। मन में कुछ ठाना हुआ था कि नहीं मुझे करना है चाहे कोई भी सिचुएशन हो, तो उन लोगों ने हम्म, आगे बढ़कर किया भी है, उन्होंने बहुत मुश्किलें भी झेली है, परेशानियां भी झेली है, लेकिन उसको एक अच्छे पॉजिटिव वे में लेकर एक लाइफ का चैलेंज मानकर वो लोग आगे भी बढ़े हैं। क्योंकि पैंडेमिक सिर्फ हम्म, हमारे लिए नहीं था ना, ओवरऑल था, हम्म, ग्लोबली हर कंट्री में ये हम्म, प्रॉब्लम था। सही है। तो इसीलिए नहीं, बहुत अच्छा लगा मैम, आपकी स्पीच भी बहुत अच्छी लगी, और बहुत सारे पॉइंट जो आपने अभी जो बोले, वो अगर देखा जाए तो हर कोई अगर इसको पॉजिटिव वे से अगर देखेगा और इसके ऊपर अप्लाई करेगा और समझेगा, तो उसे भी बहुत सारा नॉलेज मिलेगा इसमें मैम। बिल्कुल बिल्कुल मैम। मैम मैंने ये वेबिनार का टॉपिक सिलेक्ट ही इस हिसाब से किया था क्योंकि लास्ट जी कुछ महीनों में मैं इतने सारे लोगों से मिली हूं ना, चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चाहे फिजिकली, 90% लोगों ने मतलब यही बोला है कि मैम बहुत बुरा टाइम गया है, मैम ऐसा गया है, मैम वैसा गया है। मतलब किसी के मुंह से एक अच्छी चीज नहीं निकली। इवन स्कूल्स के लिए लोगों ने नहीं। यही कहा कि स्कूल्स क्लोज डाउन हो गए हैं, बच्चों की ढंग से तो पढ़ाई होती नहीं है, कुछ समझ में आता नहीं है, जैसे तैसे पढ़ाई हम्म, कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे। पर आप ये सोचो, जब आप लोग ये कमेंट्स देते हो, उन टीचर्स ने हम्म, कितनी मेहनत की, अपने आप को ऑनलाइन स्टडीज के लिए तैयार किया, उनका तो कितना हाँ अलग सा पैटर्न था इतने सालों में। हाँ, कितने सालों से सही है। एक ट्रेडिशनल मेथड फॉलो कर रहे थे वो लोग, हम्म, अचानक से सब कुछ पीपीटीज के थ्रू समझाना बच्चों को, गूगल से चीजें ढूंढना, गूगल क्लासरूम अरेंज
करना, एक वर्चुअल सारा असाइनमेंट्स उस पर डालना, फिर उसी में सारा चेक करना, वर्कशीट गूगल फॉर्म्स के तौर पे भेजना, टीचर्स के लिए आसान नहीं था ये सब करना, नहीं उनके था, लिए भी बहुत सही है। मुश्किल था। हाँ, बराबर है। लेकिन उन लोगों ने तो हिम्मत नहीं हारी, उन लोगों ने तो 2 महीने में अपने आप को तैयार किया और बच्चों का ऑनलाइन, तैयार आज किया। मान के चलिए अगर वो हिम्मत हार जाते और बोलते हम नहीं कर सकते, तो 2 साल बच्चे पीछे हो जाते पढ़ाई में। आज बच्चे 2 साल पीछे होते अपनी एजुकेशन में, लेकिन टीचर्स ने ये नहीं होने दिया, स्कूल मैनेजमेंट्स ने ये नहीं किया। उन लोगों ने जैसे भी हुआ चीजों को अपडेट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से किया और ऑनलाइन मोड पे बच्चों को पढ़ाया। आई थिंक वी शुड बी थैंकफुल टू व्हाटएवर वी हैव इन अ पॉजिटिव वे। सही है मैम, देखो हर चीज का अगर देखे तो पॉजिटिव वे भी है और नेगेटिव वे भी है। अब हम उसे अगर पॉजिटिव वे से लेते हैं तो कोई भी बुरी बात हो ना, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ अच्छा ही मिल जाएगी अगर देखेंगे तो। जी बिल्कुल, तो है। हाँ जी, नहीं बहुत अच्छा लगा आप दोनों ने ज्वाइन किया और हम लोगों ने काफी अच्छा सा डिस्कशन किया। मैं आप दोनों के साथ ये रिकॉर्डिंग भी शेयर करूंगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ, और मैम आगे से ऐसा कुछ भी हो तो आप लिंक भेजते रहिएगा मैम। श्योर मैम, श्योर, आई विल श्योरली डू दैट, थैंक यू हाँ, सो मच। ओके।